Okay, good morning, student. I am your AVS teacher, Asmita Verma, okay, from Bharatiya Boarding School. Okay, ma'am. Okay, yesterday we take a chapter of 6, okay, Umana's journey. Now today we are going to take a chapter 7 from the window. It is related to the Umana's journey, okay. You can say Okay, second ma'am. part of Umana's journey. Okay. Okay. Can you tell us, okay, something about our yesterday chapter, Umana's journey? Yes, ma'am. Okay. Please tell. Ma'am, Umana and Radha are best friends. They want to go Kerala, but Radha's leg is fractured because she fell down from the cycle. Very good. Okay. In this chapter, we know about the train. Okay. How to take a ticket, how we go to the platform, what thing we are doing on the platform, about the train, what type of seats are there in the train, okay, what we want if we want to go to the train trip, okay, and what Okay, what ma'am. can pack to for lunch dinner in a train, okay, like this we learn all the things in this chapter, Umana's journey, okay, and about some station and the train journey, what we see in a train journey, what we see and what things are in a station, railway station, okay, who check our ticket, this thing you all remember? Yes, ma'am. याद है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. Okay, then tell me, which shop Umana see on a platform? Which type of Ma'am, which type of sounds? कितनी आवाज आ रही थी उसको प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन रुकी थी for 2 minutes? मैम चाय गरम, दूध ठंडा, आँख लेके, बटाटा वड़ा, और पूरी साग. Okay, who is the friend? In train there is a Umana's new friend, 2 new friends. What is the name of their friends? Sunil and Ann. Okay, very good. Then, okay. Who is take our, matlab help to carry our luggage in a platform? Coolie. Coolie, very good. Okay, who drives the train? ट्रेन कौन चलाता है? Hello, my driver. Driver. Okay. Yes, so today yes. we take chapter number 7 from the window. Okay, it is related to the chapter Unama's journey. Okay, what do you mean by from the window? Can you tell me? खिड़की के पास. खिड़की के पास या खिड़की के बाहर, ठीक है. अभी ओनामास की जर्नी थी, वो कहाँ पे थी? ट्रेन में. तो ट्रेन में कहाँ बैठ के सारे सीन्स देखेगी? बाहर की चीजें कहाँ बैठने पे उसको दिखेगी? विंडो पे. ठीक है. तो फ्रॉम द विंडो में भी रिलेटेड टू क्या, वो खिड़की में से क्या क्या चीजें देखती है. ओके, आइडिया आ रहा है आप लोगों को? यस मैम. फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, उसने विलेज देखे थे, ड्राई विलेज देखे थे, सनसेट देखा था, है कि नहीं? यस मैम. I am going to share my screen. Okay, now we start our chapter. Okay, this is our 7th chapter from the window.
Okay, window. What do you mean by window? खिड़की. खिड़की. Okay, you can see this picture where your lesson name is written. आपको वो पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे आपके लेसन का नाम लिखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Which picture is related to? From which thing the picture is related to? Ma'am, window. Window. Okay. But किसका window है ये? Train. Train window. It is a train window. Okay. एक ट्रेन की खिड़की है. ठीक है. ओके तो ये हमारा लेसन पूरा इस पे ही डिपेंड है. फ्रॉम द विंडो मतलब विंडो से हमने क्या क्या देखा या विंडो से रिलेटेड. ओके ये लेटर कौन लिखता है? मैम हु राइट द डायरी? ओके ओके. Yes, ma'am. Okay, who write this letter, this journey in a diary? ये Yes. डायरी राइटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं बुक में कौन लिख रहा है? ओमाना. ना. ओके किसके लिए लिख रही है? फॉर हूम? For राधा. फॉर हर फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड राधा. ओके अभी उसकी जर्नी कौन सी डेट पे स्टार्ट हुई थी? Pardon me. नहीं टाइम कौन से टाइम पे स्टार्ट हुई थी उसकी जर्नी? 16 May. व्हाट इज टाइमिंग? 11:35. 7:35. 11:35. Yes or no? Yes, ma'am. ओके तो हमने 11:35 जो था उसके पूरे डेज को देख लिया था कि पूरे दिन में उसने 16 जुलाई को पूरे दिन में क्या क्या किया. हमने मॉर्निंग का देखा था वो जब ट्रेन में चढ़ी थी. फिर दोपहर में उसने जब लंच किया उसके बाद क्या किया वो देखा था. फिर इवनिंग टाइम में उसने सनसेट देखा और बहुत सारे खेत देखे. फिर रात को वो लोग डिनर किया. ठीक है अभी यहाँ पे ये चैप्टर में हाँ अभी वो रात को डिनर करके क्या सो गई थी. ठीक है वो लोग अपने अपने सो गए थे. अभी आज की डेट क्या है? 17 में. व्हाट इज टाइम? 7:30. 7:30. इट इज अ मॉर्निंग नाउ. अभी ये दूसरे दिन का मॉर्निंग हो गया. ओके 16 ये मई का तो उसने अपना सब बताया कि मैंने क्या क्या किया. ठीक है अभी ये हमारा दूसरा दिन चालू हुआ उसका ट्रेन में. ओके इट इज मॉर्निंग नाउ. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्लियर. उसने बताया कि अभी सुबह हो गई है और लास्ट नाइट मतलब पिछले नाइट को मैं जल्दी सो गई थी. ओके इट वॉज लुक डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. ओके जो रात का टाइम था वहां पे बाहर कुछ भी सब कुछ डार्क दिख रहा था. मतलब डार्क मतलब क्या हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले एक पोयम में. व्हाट डू यू मीन बाय डार्क? अंधेरा. अंधेरा मतलब बाहर क्या दिख रहा था? सिर्फ अंधेरा. When the train stopped earlier this morning, I woke up. जब ट्रेन आज की मॉर्निंग में मतलब जब ट्रेन रुकी कहाँ पे रुकी होगी ट्रेन? किसी स्टेशन पे. ओके आई वॉक अप मतलब मैं उड़ गई. इट वॉज मडगांव. क्या नाम था? मडगांव में उसकी ट्रेन जो है वो रुक गई. That was written on the board of the platform. ये जो वो जो था मडगांव वो प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे लिखा था. आपने देखा है प्लेटफॉर्म पे बोर्ड्स होते हैं जो स्टेशन का नाम. यस मैम और स्टेशन का उस पे नाम लिखा हुआ रहता है. कौन से कलर का बोर्ड होता है? मैम कोई भी बोर्ड रहता है. बड़ा सा एक रहता है. जर्नी येलो कलर का रहता है. उसके ऊपर ब्लैक कलर और ब्लैक कलर से उसका नाम लिखा हुआ रहता है. कौन कौन से लैंग्वेज में लिखा रहता है नाम प्लेटफॉर्म का?
उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। नॉट उर्दू। देखो, एक लैंग्वेज इंग्लिश होती है कि जो बहुत लोगों को आती है, दूसरी हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज जो होती है ना, वो जिस जगह पे स्टेशन है, जैसे अभी महाराष्ट्र में है तो वो मराठी में लिखा रहेगा, ठीक है, और यूपी में है तो वापस यूपी की जो हिंदी है ना उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। गुजरात में है गुजराती में लिखा रहेगा, क्योंकि वहां के रहने वाले लोग जो गांव पे रहते हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उनकी भाषा में भी लिखा रहता है, ठीक है। अभी ये हमें प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का जो बोर्ड रहता है उस पे देखा मैंने। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। उसके अप्पा ने बताया कि अभी हम लोग गोवा से पास आउट हो रहे, गोवा का जो स्टेट है वहां से पास आउट हो रहे, मतलब जो मड गांव है वो गोवा में आता है। कहाँ आता है? गोवा में। गोवा में। ओके 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 बेबी, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्निंग? सुबह। सुबह। लास्ट? लास्ट पहले या पिछले, या फिर पीछे। सबसे पीछे। ओके। नाइट? रात। स्लीप? व्हाट डू यू मीन बाय स्लीप? सोना। डार्क? अंधेरे। एनीथिंग? कोई भी चीज। आउटसाइड? बाहर का। स्टॉप्ड? रुक जाना। ओके। वॉकअप? वॉकअप? वो कब मैम उठ जाना, सो के उठना। रिटर्न? लिखा हुआ। प्लेटफॉर्म? ट्रेन का मैम प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म ही होगा। प्लेटफॉर्म स्टेशन बोल सकते हैं हम। ओके ओके। तो यहाँ तक हमने देखा कि दूसरी सुबह थी। सुबह क्या हुआ, रात को वो जल्दी इसलिए सो गई क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो लिख भी नहीं सकती थी, क्योंकि ट्रेन में जो लोग हैं वो लोग जल्दी लाइट बंद कर देते हैं। ओके, सबका सोने का टाइम अलग अलग होता है ना, तो ट्रेन में भी अंधेरा हो गया था, और बाहर का भी उसको कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो विंडो के पास नहीं बैठ सकती थी, इसके लिए वो सो गई। लेकिन सुबह वो जल्दी उठी। क्यों उठी? क्योंकि उसकी ट्रेन रुक गई थी। और कहाँ रुकी थी? मडगांव में। और वो उसको कैसे पता चला वो मडगांव है? उसने प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे पढ़ा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे पढ़ा। और उसके पापा ने बताया कि मडगांव जो है वो गोवा में आता है। अभी हम लोग गोवा में, ठीक है। ओके सत्यनारायण, रीड दिस पैराग्राफ। We got off at the station, had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I found difficult to describe the scene outside. It is green everywhere, fields with red soil, green crops and hills covered with trees. Okay, we got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. उसने क्या बोला? We got off station. हम लोग, उसके पापा या फिर वो स्टेशन पे उतरे, और उन्होंने क्या, ट्रेन स्टेशन पे उतरे और उन्होंने गरम गरम चाय पी। हॉट मतलब गरम, टी मतलब चाय, गरम चाय पिया, और फिल मतलब भरना, अपनी बोतल जो थी वो भर ली। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, और ट्रेन जो थी वापस चलना स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। उसके लिए आसान नहीं था, जो बाहर का सीन वो देख रही थी ना, उसको डिस्क्राइब करना इजी नहीं था उसके लिए, ठीक है। क्या देखा उसने बाहर? इट इज सो ब्यूटीफुल। वो जो सीन था बाहर का, so beautiful, grass green everywhere, fields with red soil, हरे हरे क्रॉप्स, और पेड़ ढके हुए पेड़ से,
हाँ, तो अभी कहाँ देख रही थी? खिड़की के बाहर। तो खिड़की के बाहर का जो नजारा था वो बहुत खूबसूरत था। अभी क्या क्या था? इट इज ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ क्या था? ग्रीन था, मतलब हरा भरा था, हरियाली थी, हरा भरा था, फील्ड विथ रेड सॉइल। ये गोवा में ना सॉइल जो होती है वो रेड होती है। सॉइल भी बहुत सारे प्रकार की होती है, ब्राउन राइस, ब्राउन सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ऐसा करके। ठीक है, हमारे जो यूपी में होती है वो कौन सी सॉइल होती है? मैम ब्राउन। ब्राउन सॉइल। ओके। और जहाँ पे मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, वहां पे ब्लैक सॉइल होती है ज्यादातर। ठीक है, बट यहाँ पे जो गोवा है वहां पे क्या होती है? रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ठीक है, एंड ग्रीन क्रॉप्स। वहां की जो खेती होती है वो लाल मिट्टी में ही होती है। ग्रीन क्रॉप होता है हरे भरे खेत। ठीक है, और हिल्स कवर विद द ट्री। और जो बड़े बड़े पहाड़ थे, हिल्स थे, वो किससे कवर थे? ट्री से। मतलब पेड़ों से। ओके, ओके बेबी, व्हाट डू यू मीन बाय हॉट? गरम। गरम। ओके, सत्यनारायण फील्ड। यस सत्यनारायण मैम, फील्ड भरना। बेबी स्टार्टेड। मतलब शुरू करें। स्टार्टेड, शुरू होना। ठीक है, अगेन, शुरू। अगेन, अगेन मीन फिर से। डिफिकल्ट, मैम हाँ, किससे पूछ रही हैं? कोई भी बताओ। डिफिकल्ट, मैम भारी। भारी और मुश्किल। ठीक है, ओके। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, यस मैम। डिस्क्राइब। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्राइब? मैम आई डोंट। किसी चीज को विस्तार में बताना। ओके, डिस्क्राइब करना। जैसे वो डिस्क्राइब कर रही है ना विंडो के बाहर का सीन, तो उसको हम बोलते हैं संक्षेप में बताना। ओके, या फिर विस्तार में बताना किसी चीज के बारे में। आउटसाइड, बाहर का। ब्यूटीफुल, सुंदर। ग्रीन, हरा। एवरीवेयर, कहीं भी। कहीं भी या सब जगह। ठीक है, फील्ड, यस मैम, फिर खेत। खेत, सॉइल। बेबी सॉइल का मतलब मिट्टी। क्रॉप, चारा। कवर्ड। ढका हुआ। Okay. Okay, baby, start reading this, starting this page. Sometimes से start करो baby. Yes ma'am. Sometime I can see a small pond and if far away Away. behind the hills more water I can make out if it is a river or the sea. Here is cooler and not so Dry. as in Ahmedabad. Okay, very good baby. Then sometime I can see a small pond and far away. Okay, कभी कभी उसको क्या दिखते थे? Small ponds. What do you mean by ponds? तालाब।
तालाब, ओके, एंड फार अवे, पर वो कैसे थे और दूर दूर थे, बिहाइंड द हिल्स, कैसे थे बिहाइंड द हिल्स मतलब हिल के पीछे, हिल के अंदर, और बहुत ज्यादा पानी, आई कांट मेक आउट इट इज द रिवर और सी, उसको नहीं पता था ये नदी है या समुद्र है, उसको पता नहीं चल रहा था। क्यों पता नहीं चल रहा था? क्योंकि वो सारी चीजें उससे बहुत दूर थी और उसमें जो वो देख रही थी उसमें बहुत सारा पानी था। द एयर इज कूलर, जो हवा थी वो बहुत ठंडी चल रही थी, एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद के जैसी सूखी सूखी और सूखा सूखा नहीं था, और अहमदाबाद की जैसे गर्म हवा नहीं चल रही थी। ओके ओके, ओके, ट्रेन से उसने क्या देखा? स्मॉल पॉन्ड्स, ओके, स्मॉल पॉन्ड और हिल्स बिहाइंड, ओके, बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, और हिल के पीछे पानी देखा, river or sea, but she can't understand it is river or sea. Okay, and the air is dry, cooler in a Goa. Okay, you can tell me why the air is cooler in a Goa? गोवा में हवा ठंडी क्यों चलती है? because in क्योंकि the Goa many trees many trees grow, है, many trees. गोवा जो है ना वो पानी से घिरा हुआ है। ओके, गोवा And जो the है, environment is Goa is very हाँ, cool clear. environment because of more tree and more water and beaches. आपको पता है गोवा में लोग स्पेशली घूमने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे बीचेस बहुत सारे हैं। ओके, Yes. गोवा क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, वहां पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे बीचेस बहुत सारे। मूवीज में भी देखा रहेगा ना आप लोगों ने गोवा को। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो yes, गोवा ma'am. इसके लिए वहां जो है वो हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि एक तो पानी के पास है और ऊपर से पेड़ बहुत सारे हैं उधर। ठीक है, ओके सत्यनारायण, Yes. स्टार्ट नेक्स्ट। द ट्रेन पास्ड, The train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycle, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. ओके ओके, यहाँ पे देखो आपको साइड में एक सीन दिख रहा है। Yes, गोवा, ma'am. Yes. ये हमारे लेफ्ट साइड में, Yes, साइड ma'am. स्क्रीन पे क्या दिख Yes, रहा है ma'am. इधर? Yes. Many buses, bullock carts, cars. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ साइड में आपके पेज के साइड में ब्लू ब्लू दिख रहा है, लेफ्ट साइड। Ma'am, many cars, bikes, and people. वो नहीं पूछ रही मैं सत्यनारायण, ये तो बीच में है ना, मिडिल में है, यहाँ पे इस साइड। अच्छा, मेरा लेफ्ट है, आपका राइट होगा, राइट साइड में। ये देखो साइड में बना है एक वुड की लकड़ियां है कुछ तो भी, और ब्लू ब्लू दिख रहा है। ये ब्लू ब्लू क्या है? वाटर है, समझ में आपको? Water. जो वो ट्रेन Yes, में से ma'am. देख रहे। ओके, हमें अगर पानी दिखता है ना ट्रेन में से तो वो दिखता ही जाता है, ऐसा लगता है कितना दूर तक है या फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने ऑब्जर्व किया है कभी? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट। द ट्रेन पास्ड लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग इसको बोलते हैं जहाँ पे ट्रेन आने पे बाकी गाड़ियां रुक जाती हैं। आपने देखा है कभी लेवल क्रॉसिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो अगर वहां से कोई गाड़ी जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए लेवल क्रॉसिंग सेफ्टी के लिए होता है हमारे। जब कोई ट्रेन आने वाली है उसके 5 मिनट पहले वो बंद हो जाता है और ट्रेन जाने के 2 मिनट बाद वो खोल देते हैं कि आप लोग अपनी गाड़ी पास कर लो। वो ये हमेशा ऐसे रास्ते पे होता है जहां से ट्रेन और बाकी गाड़ी का एक ही रास्ता होता है। ओके, समटाइम। Yes. तो उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। वहां पे दोनों साइड के जो पीपल थे, लोग थे, वो वेट कर रहे थे। किस चीज का वेट कर रहे थे? ट्रेन आने का और जाने का। हाँ, ट्रेन पास होने का मतलब, पास होना मतलब आके जाने का, क्योंकि ट्रेन आके जाएगी तभी वो अपने अपने रास्ते पे
जा पाएंगे। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, वहां पे बसेस थी जिसमें पूरे बहुत सारे लोग भरे थे। कार थी, ट्रक थी, ऑटो रिक्शा थी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ट्रक, बस, कार, ऑटो रिक्शा। Yes, ma'am. ओके, ये सब तो हमने रियल लाइफ में भी देखा है कि नहीं? सच में भी देखा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सम टाइम वी आर ऑन, मतलब अगर हम कार में नहीं है तो हमने यहाँ पे वेट भी किया रहेगा ट्रेन क्रॉस होने का। और अगर हम ट्रेन में हैं तो ट्रेन में तो कितने सारे आते हैं ऐसे लेवल क्रॉसिंग, देखा है? ट्रेन में जब हम जर्नी करते हैं कम से कम 3 to 4 लेवल क्रॉसिंग पास होती है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes. वहाँ और ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड इवन टांगा एंड बुलेट कार्ट विथ पीपल एंड गुड्स इन दैम। ओके, क्या क्या कौन कौन से व्हीकल्स हमने लेवल क्रॉसिंग पे देखा? विच व्हीकल्स आर इन लेवल क्रॉसिंग? व्हीकल्स Buses, मतलब cars, trucks, auto rickshaw, cycle, cycle, motorcycles, scooter, and bike. even tongas and bullock carts with people and goods in them. ओके, क्या क्या था? टांगा पता है आप लोगों को? टांगस क्या होता है? Yes, ma'am. व्हाट इज टांगस? Tum tum. और बुलेट कार्ट? Ma'am, बैलगाड़ी। ठीक है, Kalga. Yes, ma'am. with peoples and goods in them. Okay, some people do not switch off the engine of their vehicles even while waiting at level crossing. कुछ लोग थे उन्होंने अपने इंजन ऑफ भी नहीं किए थे। हमें लेवल क्रॉसिंग पे या जब ट्रैफिक जाम होता है तो क्या करना चाहिए? अपने गाड़ी के इंजन ऑफ करने चाहिए। उससे दो चीज होगा, एक तो उनका पेट्रोल बचेगा और दूसरा पॉल्यूशन कम होगा। जब उनका इंजन चालू है, एक तो कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं? Ma'am, noise pollution. Noise pollution. एंड एयर पॉल्यूशन। गाड़ी से धुआं निकलता है ना पीछे, तो उससे हम एयर पॉल्यूशन होता है। और वॉइस पॉल्यूशन उनकी गाड़ी की होता है, ऐसे आवाज आती है जब इंजन Yes, चालू ma'am. रहे, गाड़ी एक जगह पे रुकी रहे। और सबसे गंदी आवाज ऑटो की आती है ना? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये लेवल क्रॉसिंग पे अपने इंजन भी ऑफ नहीं किए थे। मीन्स अपना ही पेट्रोल वेस्ट कर रहे। ठीक है, अपना ही पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों का भी। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। स्मोक मतलब धुआं, एंड नॉइज मतलब आवाज, तेज आवाज। तो मैंने बोला ना, ये दो पॉल्यूशन होता है। स्मोक पॉल्यूशन किससे है? धुआं से, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। और नॉइज पॉल्यूशन जो है साउंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ओके, आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। कुछ पीपल थे, जो कुछ लोग थे, वो लेवल क्रॉसिंग कैसे होती है? लेवल क्रॉसिंग ऐसा होता है, दोनों साइड ये स्टैंड रहता है और बीच में एक मेटल का डंडा रहता है, मेटल की रॉड रहती है। जब नहीं आता, जब ट्रेन आने वाली है तो वो उसको ऐसे डाल देते हैं, और जब ट्रेन चली जाती है ऐसे ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके बीच में थोड़ा तो डिस्टेंस रहता है कि लोग निकल सके झुक के। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसके अंदर से जा रहे थे, अंदर द बार ऑफ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के अंदर जो थोड़ी सा स्पेस था ना, उसके अंदर से घुस घुस के जा रहे थे। ऐसे जा रहे थे। यस मैम। लेवल क्रॉसिंग के अंदर से जाना चाहिए क्या? नो मैम। नो मैम, ये जो गवर्नमेंट कर रही है या फिर जो भी सर्विसेज ट्रेन वाले कर रहे हैं या बस वाले, क्यों कर रहे हैं? हमारी सेफ्टी के लिए, है ना? हमारी सेफ्टी के लिए करते हैं। उनको क्या पड़ी है कि वो बंद करके यहाँ पे ध्यान दे कब बंद करना है, कब खोलना है। वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्या 2 मिनट लेट हो जाएगा वो चलेगा, बट हमारी जान चली गई वो अच्छा नहीं है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंस नहीं रख सकते और क्रॉस करते हैं अंदर से। क्योंकि उनको पता, वो देखते हैं ट्रेन तो नहीं आ रही है, और नहीं आ रही तो नीचे से तब तक चल लेते हैं, हम घुस लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जब बंद करते हैं ना, तो कभी भी ट्रेन आ सकती है अचानक से। कभी कभी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है तो पता भी नहीं चलता, और कभी कभी कम होती है तो मे भी बच सकते हैं। ठीक है,
तो कभी हमें ऐसे लेवल क्रॉसिंग पास नहीं करना चाहिए अगर स्टॉप है, वो बंद है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. हाउ डेंजरस दिस इज, ये कितना खतरनाक है, डेंजरस है। डेंजर मतलब खतरनाक, ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल क्रॉसिंग? Ma'am, level crossing. यस, जहाँ से ट्रेन है, जो व्हीकल्स को स्टॉप जहाँ करने से के लिए। दो रास्ता होता है, एक ट्रेन जाने का और एक गाड़ी जाने गाड़ी का। चल ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बोथ? दोनों। दोनों वेटिंग, इंतजार करना। साइड्स, साइड्स। मैम कॉर्नर। तरफ, साइड, तरफ। ठीक है, तरफ, ये साइड वो साइड, मतलब इस तरफ उस तरफ। क्रॉसिंग, पार करना। देन स्विच ऑफ, बंद करना। व्हीकल्स, गाड़ियाँ। स्मोक, धुआं। नॉइज, या नॉइज मतलब व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज? तेज आवाज या शोर। अंडर, के अंदर। नीचे, अंडर मतलब नीचे। डेंजरस, खतरनाक। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेंगे। बेबी रीड एट टाइम से। यस मैम, पार्डन मी मैम। पार्डन मी मैम। व्हाट सत्यनारायण? पार्डन मी मैम। मैंने बोला बेबी रीड एट टाइम से, रीड करने बोला बेबी को। At time our train crosses another train near, and I tried to count the carriages in one Carriages, such one train, but the trains were going so fast. We also always, got confused. ओके। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। और कभी कभी क्या होता था, हमारी जो ट्रेन थी वो दूसरी ट्रेन। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, ओके। कभी कभी होता था कि हमारी ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, ठीक है। उनी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन अ वन सच ट्रेन। वो उनके मतलब क्रॉस करना मतलब कभी कभी क्या होती है, ट्रेन की दो लाइंस होती है, आपके सामने भी एक लाइन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक। तो हमारी ट्रेन यहाँ से जाती है तो इसके सामने से दूसरी ट्रेन भी क्रॉस होती है, ठीक है। तो वो 19 और वो क्या कर रहे थे, वो डब्बे गिनने की कोशिश कर रहे थे। जो उनके बाजू वाली ट्रेन जा रही थी ना, सामने वाले, उसमें कितने कोच है, कितने डब्बे हैं, वो काउंट कर रहे थे, ओके। बट बोथ द ट्रेन आर गोइंग सो फास्ट, पर दोनों जो ट्रेन थी वो क्या चल रही थी, बहुत ज्यादा बहुत fast. ऑलवेज गॉट कंफ्यूज। वो क्या हो रहे थे, बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज का मतलब क्या? कंफ्यूज मतलब मैम। यस, हेलो। हाँ हाँ बोलो सत्यनारायण। कंफ्यूज मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही सत्यनारायण। कंफ्यूज मतलब, मैम, हाँ, हेलो।
हाँ सत्यनारायण बोलो, मुझे आ रही है आपकी वॉइस। Don't know. डोंट नो, ओके। कंफ्यूज मतलब मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आना ये क्या हो रहा है, ठीक है। दो चीजों के बारे में कंफ्यूज हो जाना, जैसे समझ में नहीं आना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। कंफ्यूज मतलब समझ में नहीं आना, ठीक नहीं है। है। एट अ ट्रेन एट अ टाइम्स अवर, ये हो गया हमारा एट एट्स अ टाइम। ये भी हो गया। कैरेज काउंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही थी, तो उनी एंड आई मतलब उनी एंड उमाना क्या कर रहे थे, ट्राई मतलब कोशिश कर रहे थे, काउंट द करेजेस इन सच अ ट्रेन, वो ट्रेन में कितने डब्बे हैं। बट द ट्रेन वॉज सो फास्ट, जो ट्रेन थी वो बहुत फास्ट स्पीड में चल रही थी। तो दे वी ऑल गॉट कंफ्यूज, मतलब वो कंफ्यूज हो जा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ट्रेन हमारी चल रही है और दूसरी ट्रेन भी चल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ये भी फास्ट जा रही है ये भी फास्ट जा रही है, तो हम गिन सकते हैं क्या डब्बे। उसने अभी एक गिना, फिर No. दो डब्बे और निकल गए, फिर ये थर्ड डब्बा। अगर दोनों ट्रेन स्लो चले फिर थोड़ा सा हम कर सकते हैं, या फिर हमारी ट्रेन स्टॉप है और दूसरी ट्रेन स्लो स्लो जा रही है, तब हम काउंट कर सकते हैं। बट ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए वो कंफ्यूज हो रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको। What was the difference in a scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? Okay, सत्यनारायण। Yes, ma'am. ओमाना ने ट्रेन में जब थी तो उसने अपने दो सीन्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, मतलब दो जगह पे कैसा कैसा। तो फर्स्ट डे का उसका सीन कैसा था, सेकंड डे का कैसा था। Okay, ma'am. बुक मत लो Ma'am, बेटा, first, अपने आप बताने के लिए ट्राई करो आप। ma'am, grain fields सेकंड डे and का हमारा small. ये अभी का हुआ, गोवा जब पहुंची। उससे पहले जब वो वहां पे थी, गुजरात में ही थी, तो कैसा सीन था वहां का। Ma'am, very beautiful sunset and थॉट, small village. ओके, स्मॉल एंड ड्राई विलेज है ना, याद आया कुछ। Okay. Yes, और ma'am. यस। गर्मी हो रहा था, हॉट हो रहा था, लेकिन जब वो अनदर डे मीन सेकंड डे जब गोवा में थी तो कैसा सीन बताया उसने। Ma'am, very cold and very beautiful. हम्म, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि दोनों जगह का जो था सीन वो कैसा था। ओके, ओमानास saw many kind of vehicles at a level crossing. Which of them run on diesel or petrol? Okay, baby. ओमाना जो थी Yes. उसने लेवल क्रॉसिंग, जहां से ट्रेन लेवल क्रॉस हुई वहां पे उसने बहुत सारी गाड़ियां देखी, ठीक है। तो उसमें से आपको कुछ गाड़ियों के नाम बताना है, व्हीकल्स के नाम बताना है जो कि डीजल और पेट्रोल से चलती है। ओके, स्टार्ट, नाम बताओ। बुलेट कार, साइकिल, बुलेट कार्ट पेट्रोल से बस। चलती है बेबी। नहीं। हाँ, जो पेट्रोल से और चलता है उसका नाम बोलना है। बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, मोटर मोटरसाइकिल, स्कूटर। ओके बेबी, गुड। बट अभी अपने आप आंसर देने के लिए ट्राई करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं पढ़ाती हूँ तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो फिर आपको याद रहेगा। मुझे पता है आप दोनों बहुत ध्यान से सुनते हो, बट थोड़ा और ध्यान से सुनो, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना ओके। अभी पैराग्राफ, जो नीचे क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड ही होते हैं सब, ठीक है। Okay, ma'am. Okay. Why was there so much smoke and noise from the vehicles at a level crossing? Okay, सत्यनारायण, लेवल क्रॉसिंग पे बहुत सारी धुआं और बहुत सारा शोर क्यों था, गाड़ियों से क्यों आ रहा था। सत्यनारायण, व्हाट हैपेंड। Ma'am. हाँ, Yes, ma'am. बोलो। जब लेवल क्रॉसिंग पे गाड़ी रुकी थी
तो गाड़ियों से बहुत सारा धुआं और बहुत सारा शोर क्यों हो रहा था? आपका म्यूट है सत्यनारायण। Yes, यस, ma'am. बोलो आंसर। मेरी वॉइस आई आपको? Yes, ma'am. Hello. लेवल क्रॉसिंग जब था तो वहां पे बहुत सारी गाड़ियां रुकी थी, तो वहां पे धुआं और आवाजें, बहुत सारा शोर क्यों हो रहा था रेलवे वहां पे? Because it has very crowd and the engine of cars and bikes are on. ओके, हम ये वेरी गुड सत्यनारायण, हम ये आंसर वैसे भी दे सकते हैं, बिकॉज ऑन level crossing there are so many vehicles and some vehicles did not off their engines. Okay, Okay, ma'am. Okay. next, what can we do to reduce noise of vehicles and save petrol and diesel? Discuss. हम दोनों को बोलना है ये आंसर, ठीक है, एक एक पॉइंट दोनों को। हम क्या कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन गाड़ियों की कम करने के लिए और पेट्रोल बचाने के लिए? क्या कर सकते हैं? We पेट्रोल we बचाने can के लिए और silent गाड़ियों से, we can हाँ, we can silent and be crowd and we are ओके ma'am, बेबी, can I tell the answer in Hindi? यस, ओके, बोलो हम दोनों। सब गाड़ियों का कम से कम यूज कर सकते हैं और साइकिल ये सब का ज्यादा कर Use कर सकते हैं। सकते हैं। ओके, दिस इज गुड आंसर। ओके, बट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आंसर? टू रिड्यूस नॉइज ऑफ व्हीकल्स एंड सेफ पेट्रोल वी कैन ऑफ अवर इंजन ऑन रेलवे क्रॉसिंग ऑन ट्रैफिक एंड ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक में And हम we are use cycle. या and or sometime if not necessary we can use cycle and without diesel vehicles. Okay, Okay, ma'am. ma'am. and we can aware the people about the noise pollution, what the causes, make take action because of noise pollution, and okay, and what happen when the petrol is over. ओके, आपको समझा? हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जब भी हम लेवल क्रॉसिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो हमें अपना इंजन क्या कर देना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए, और जिधर इससे जरूरत शोर नहीं भी है नहीं होता है और पेट्रोल भी बच जाएगा। बचेगा। Yes. और दूसरी चीज, हमें अगर जरूरत नहीं है, पास में कहीं जाना है, तो हमें या तो पैदल चलना साइकिल का चाहिए या यूज करना साइकिल चाहिए। या विदाउट डीजल वाली गाड़ी यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो पीपल ऐसे काम करते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि सुनते ही नहीं हैं और ये लेवल क्रॉसिंग और ट्रैफिक जैम में और इंजन ऑन ही रखते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है, तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि आपकी जल्दीबाजी से क्या हो सकता है, और अगर दुनिया में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या हो सकता है, ठीक है। हमें हमारे जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है ना, आने वाली जनरेशन। ओके, यस Yes. तो फिर उसके लिए भी छोड़ना है, तो हम उनको बता सकते हैं आप जो इंजन ऑन रखते हो उससे आपको तो तकलीफ होगी और आपका तो पेट्रोल खत्म हो रहा है, ऊपर से जो आपके आजू बाजू लोग है या फिर आपके नॉइज पॉल्यूशन की वजह से उनके कान में कुछ तकलीफ हो सकती है, ठीक है, उनके बॉडी में। और जो इंजन ऑन रखा है तो आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, तो उसके वजह से अस्थमा, लंग्स प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो सकते यस Yes, ma'am. अच्छा, आप लोग स्कूल की तरफ से कभी रैली जाते हो? यस रैली निकलती है आपके स्कूल से? यस मैम। ओके, किस टॉपिक पे गई थी आपकी रैली? मैम मैम मैम
सत्यनारायण आपका ऑफ है, म्यूट है। मैं आपसे नहीं बोल। मैम नौरंगा, अब्दुल्ला, ब्लॉक एनडीटीसी। ओके ओके, हम रैली क्यों निकालते हैं? रैली जो निकालते हैं सबको समझाते हैं। हाँ, हम सबको समझाने के लिए रैली निकालते हैं। या एक्टिव करने के लिए। ओके, कि जो लोग ये चीज के बारे में नहीं जानते उन्हें भी पता चल जाए वो चीज का इम्पोर्टेंट। जैसे कि नॉर्मली हम गांधी जयंती को रैली निकालते हैं, उस टाइम हम क्या बताते हैं लोगों को? गांधी जी की वैल्यू बताते हैं। और गांधी जयंती के दिन क्या होता है? सच मतलब ये साफ सुथरा रखने का दिन, स्वच्छता दिवस, पता है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो हम उस दिन सफाई की बात करते हैं, रैली निकालते हैं, कुछ कार्डबोर्ड साथ में पकड़ते हैं, बैनर्स लेके जाते हैं, लोगों को बताते बैनर हैं। लेके जाते हैं और कार्डबोर्ड पकड़ते हैं। और बीच बीच में चिल्ला चिल्ला के स्लोगन बोलते हैं, पता है कि नहीं? यस मैम। यस। तो ये हम लोग लोगों को सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, मतलब उन्हें ये चीज की वैल्यू बताते हैं कि अगर हम अपना देश क्लीन नहीं रखेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो व्हाट प्रॉब्लम वी हैव टू फेस, हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाँ बोलो बेटा। मैम, आवर एनवायरनमेंट इज डैमेज्ड एंड सांस लेने में तकलीफ होगी। और अगर हम अपने घर के और बारिश देंगे फसल नहीं उगेगी, तो उससे किसको प्रॉब्लम होगी? हमें ही प्रॉब्लम होगी। अगर हम कचरा डस्टबिन में नहीं डालेंगे, अपने घर के बाहर फेंक देंगे, तो उससे किससे प्रॉब्लम हो, किसको प्रॉब्लम होगी? मैम हम ही सबको होगी और बाकी सारे जानवर और आदमियों को होगी। हाँ, तो हम कचरा फेंकेंगे, उसमें मच्छर लोग बैठेंगे और वही मच्छर आके हम लोग को घर में काटेंगे, उससे मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी होती है। ठीक है, तो ये हम रैलीज निकालते हैं। एड्स डे रहता है, ये एड्स डे, पता है एड्स डे? उस दिन भी रैली निकालते हैं। या फिर यहाँ पे बीच बीच में मतलब रैलियां निकालते रहते हैं जब हमें कोई फेस्टिवल आता है या फिर ऐसे ही किसी भी स्कूल का प्रोग्राम बनता है। ठीक है, हाँ, ये सारे डेज पे हम निकालते हैं कि हम जिस चीज की हमें इंफॉर्मेशन है वो लोगों को भी पता चल जाए। जैसे अबाउट एजुकेशन की कोई कोई लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी निकालते हैं हम लोग सब। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग ऐसी एक रैली निकाल सकते हैं। ओके, ये जो नॉइस पॉल्यूशन है डीजल बताने के लिए, उसको हम एक रैली निकालेंगे, तो उससे क्या होगा? अगर कोई एक इंसान कर रहा है उसको हम जाके प्यार से समझाएंगे कि ऐसा मत करो, आप गलत कर रहे हो, तो वो हमारे ऊपर भड़क सकता है कि नहीं? गुस्सा कर सकता है कि आप कौन हो बोलने वाले। और अगर ये लाइन में 10 लोग यही काम कर रहे हैं, इंजन ऑन करके बैठे हैं, तो हम एक एक को जाके नहीं बोल सकते। बट रैली निकालेंगे तो हमारे साथ ग्रुप रहेगा, तो ग्रुप की बात लोग जल्दी सुनते हैं। एक तो ग्रुप की बात जल्दी सुनेंगे और एक साथ में हमारी बात सब लोगों पे पहुंच सकती है। ओके ओके मैम। Okay, sometime people cross the track even when the crossing is closed. What do you feel about this? कभी कभी क्या होता है जब लेवल क्रॉसिंग होती है वो बंद होती है। ओके, क्रॉस द ट्रैक, ट्रैक को क्रॉस करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? What do you want to say about this? लास्ट है, फिर हम लोग बंद करेंगे। ओके ओके give me the answer.
आंसर दो। मैम यस, व्हाट हैपेंस सत्यनारायण? सत्यनारायण बेबी, यस मैम। व्हाट हैपेन? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, इस पे आप लोग को डिस्कस करना है, ठीक है? डिस्कस करके आना है और कल Okay, मुझे ma'am. आंसर देना है, ओके? ओके मैम। पेज नंबर 55 पे देखो एक क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर किया उसके नीचे डिस्कस लिख के एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप दोनों को साथ में डिस्कस करना है और कल मुझे आंसर बताना है, ओके? ओके मैम। ओके, ठीक है, तो आज यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, आज ये लेसन में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा या क्या क्या हमें पता चला फ्रॉम मैम द हमें ये पता चला गोवा में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, और ट्रेन में क्या क्या स्टेशन पे क्या होता है, और सबसे और पहले आगे। हमने सीखा कि मडगांव जो है वो गोवा के अंदर आता है, ठीक है? गोवा एक स्टेट है, मडगांव उसके अंदर एक सिटी आता है या फिर विलेज बोल सकते हैं। और जो गोवा है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जो कि हॉट ये क्या बोलते हैं, सी वॉट रिवर से और पॉन्ड से घिरी हुई है, और जो हिल्स है वो कवर है ट्री से, ओके? और गोवा की जो सॉइल होती है Okay, वो ma'am. रेड कलर की होती है, ओके? ये हमने सीखा। और Okay, हमने ma'am. सीखा कि रेलवे क्रॉसिंग, और हमने सीखा कि गोवा की जो ये है ना वेदर, वो अहमदाबाद से बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर स्टेट का वेदर जो है वो अलग अलग रहता है एट अ टाइम, ओके? जैसे अभी जून है, जून में यहाँ कुछ और सीजन रहेगा, वहां कुछ और रहेगा, ठीक है? सीजन सेम रहेगा, वेदर चेंज हो जाएगा। और हमने देखा कि लेवल क्रॉसिंग के बारे में, लेवल क्रॉसिंग में क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग में ये कौन कौन सी गाड़ियां जाती है और लेवल क्रॉसिंग क्यों होता है, ओके? और हमने कुछ व्हीकल्स के नाम सीखे, आज कुछ गाड़ियों के नाम सीखे। और हमने देखा कि लेवल क्रॉसिंग पे अगर इंजन ऑफ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। और कुछ लोग जो लापरवाह हैं, जो लेवल क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी उसको क्रॉस कर रहे, तो वो उनके लिए बहुत डेंजरस है कि नहीं? Yes, ma'am. और हमने डिफरेंस देखा अहमदाबाद और गोवा की, इसमें गोवा के तीन में, ठीक है? और वेदर में, और पेट्रोल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और कौन सी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल से चलती है, और नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से कैसा हो सकता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज हमने सीखी। Okay. कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके? Okay. नाउ वी स्टॉप। और आपका अभी कितना 10:58 हो रहा है, तो मैं 11:10 पे या 11:05 पे स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Yes. 11:10 पे स्टार्ट करूं मैं? आपको 10 मिनट्स का रेस्ट चाहिए? Yes, ma'am. Yes. ओके, ठीक है, 11:10 पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, ओके? मैं लिंक्स शेयर करूंगी। बाय Bye, बाय। ma'am. Bye.